Hello, Assalamu alaikum. I'm Dr. Zeba Hissam, and I'm going to start with your new lecture, that is hematopoiesis or erythropoiesis. So, as we know that the main function of red blood cells is uh, as they have got hemoglobin in them, so the main function of hemoglobin is to carry oxygen in the blood from the lung alveoli to the tissues, and then it carries the carbon dioxide back into the lung alveoli from the tissues. So, but we do not know how the red blood cells are produced in our body. So, let's start with this. In the early week of embryonic life, the red blood cells are produced in the yolk sac. Then, during middle trimester of gestation, red blood cells are produced in the liver, spleen, and the lymph nodes. During last month of gestation and after birth, red blood cell production takes place in the bone marrow, and the bone marrow of essentially all the bones produce red blood cells until a person is or child is 5 years old, right? But what happens when we grow older? The marrow of the long bones, except for the proximal portion of the humeri and the tibiae, becomes quite fatty and produce no more red blood cells after about age of 20 years. Beyond this age, most of the red blood cells continue to be produced in the marrow of the membranous bones. And what are the membranous bones? These are such as vertebrae, sternum, ribs, or iliac bone, both iliae. Even in those bones, the marrow becomes less productive as age increases, right? Then, how the red blood cells are produced, that is, genesis of the red blood cells or production of red blood cells, is known as erythropoiesis. The blood cells begin their lives in the bone marrow from a single type of cell called the pluripotential hematopoietic stem cells, from which all the cells of the circulating blood are eventually derived. It means that this pluripotential hematopoietic stem cells can give rise to red blood cells, the white blood cells, all sort of white blood cells that we will study later, and the platelets. That is why it is called pluripotential hematopoietic stem cells. Now, as these cells reproduce, a small portion of them remains exactly like the original pluripotential stem cells and retain in the bone marrow to maintain a supply of these, although their number diminish with age. So, do you understand? These pluripotential stem cells, they remain as such in the bone marrow after giving rise to the cell line, because whole life we need these cells to be produced. So they remain in the bone marrow, but their number decreases with increasing age. ठीक है? Now look at this diagram. This is the genesis of the ब्लड सेल्स इसमें दिखाई हुई है, जिसको हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस, और इस वक्त हम सिर्फ कर रहे हैं सिर्फ इरिथ्रोपोइसिस. तो आप देखें ये लिखा हुआ है प्लूरीपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये बोन मैरो में होता है, ठीक है. प्लूरीपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और ये फिर बनाते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट अब कोई सा भी हो सकता है. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट लिम्फोसाइट्स, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स थ्रोम्बोसाइट्स. तो तीनों सेल लाइंस इसी में से निकलती हैं, प्लूरीपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स. और जब ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाता है तो फिर ये कमिट हो जाता है ये वाला सेल एक लाइन को बनाने के लिए. तो जो कमिट हुआ है रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए उसको क्या कहते हैं? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, सॉरी,
इरिथ्रोसाइट, CFUE। तो ये कमिट हो गया है ये वाला कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या बनाने के लिए, इरिथ्रोसाइट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कमिट हो जाए ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोमोनोसाइट, दो डिफरेंट टाइप के ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बनने लगेंगे। जब हम वाइट सेल्स पढ़ेंगे तो फिर उनको देख लेंगे। ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स होते हैं, विसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है। और मोनोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या हैं, दैट गिव राइज टू प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ये बना देंगे फिर मेगा कैरियोसाइट्स प्लेटलेट, और ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। और ये जो ग्रेनुलोसाइट और इरिथ्रोसाइट हैं ये होल सेल हैं, ये पहले भी हमने देख लिया था। तो ये समझ में आ गया। पहला सेल जो है वो प्लूरीपोटेंशियल कमिटेड स्टेम सेल होता है, प्लूरीपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है। फिर वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाता है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है वो कमिट हो जाता है एक लाइन करने के लिए, तो उसको फिर जिस लाइन को वो बना रहे सेल की यानी इरिथ्रोसाइट बना रहे तो उसको कहते हैं CFUE, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट। और अगर उसको वाइट सेल्स बनाने हैं तो वो हो जाते हैं CFUGM, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। फिर जो जिसको प्लेटलेट बनाने हैं वो कमिट हो जाता है प्लेटलेट बनाने पे, तो उसको कहते हैं CFUM, M से मेगा कैरियोसाइट यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट। ये समझ में आ गया। ये हिमेटोपोइसिस है। हिमेटोपोइसिस में सारी सेल लाइंस जो ब्लड आई मीन बोन मैरो में बन रही हैं उसको हम कहते हैं हिमेटोपोइसिस। ठीक है। और सिर्फ अगर रेड ब्लड सेल्स की हम बात इस वक्त कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो हम आज इरिथ्रोपोइसिस करेंगे। Most of the reproduced cells, however, differentiate to form other cell types also. As I have told you, the intermediate stage cells are very much like the pluripotential stem cells, even though they have already become committed to particular line of the cells and are called committed stem cells. ठीक है? A committed stem cell that produce erythrocyte is called a colony forming unit, erythrocyte, abbreviated as capital CFU-E. Growth and reproduction of the different stem cells are controlled by multiple proteins called growth inducers. यानी जो ग्रोथ होनी है ना इन सेल्स की, उसके लिए हमें ग्रोथ इंड्यूसर्स चाहिए होते हैं. वन ऑफ द ग्रोथ इंड्यूसर is interleukin 3 which promotes growth and reproduction of almost all the types of committed cells. तो इंटरल्यूकिन 3 सिर्फ इरिथ्रोसाइट के लिए नहीं, WBCs के लिए भी चाहिए और जो है आपके प्लेटलेट्स के लिए भी चाहिए. द ग्रोथ इंड्यूसर्स प्रोमोट ग्रोथ बट नॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल. तो ग्रोथ इंड्यूसर जो हैं वो ग्रोथ को इंड्यूस कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन जो सेल की चाहिए जिससे बिला आखिर हमारे पास मैच्योर आरबीसी बन जाए या मैच्योर WBC बन जाए या प्लेटलेट्स बन जाए, वो नहीं होता. इससे सिर्फ ग्रोथ हो रही होती है. दिस इज द फंक्शन ऑफ अनदर सेट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर्स. तो दो चीज़ें हो गई, एक ग्रोथ इंड्यूसर हो गए और दूसरे डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर्स हो गए. Each of these causes one type of committed stem cell to differentiate one or more steps toward a final adult blood cell. फिर मैच्योर ब्लड सेल बन जाता है. तो दो चीज़ें चाहिए हमको हेमेटोपोइसिस के लिए, किसी भी सेल लाइन के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ इंड्यूसर और डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर्स. ठीक है. Formation of growth inducer and differentiation inducer is itself controlled by factors outside the bone marrow. अब ये bone marrow के बाहर हमारी बॉडी में है ये growth inducers और differentiation inducers. For instance, in case of erythrocyte, exposure of blood to low oxygen for a long time causes growth induction, differentiation and production of greatly increased number of erythrocyte. वो जो मैं आपको बता रही थी ना, और किसी ने मुझे लिखा भी था कि वो ऑक्सीजन कम होती है पहाड़ों में, माउंटेनियस एरिया में, तो वहाँ पे सुर्ख सफ़ेद लोग होते हैं. तो उसकी वजह यही है कि ग्रोथ इंड्यूसर जो है वो है ऑक्सीजन लैक. तो जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा, हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, तो ये बोन मैरो में डिफ्रेंसिएशन और ग्रोथ इंड्यूसर्स आने लगेंगे और प्रोडक्शन जो है रेड ब्लड सेल्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो सुर्ख सफ़ेद हो जाएंगे और हम लोग यहाँ पे वो प्लश ऑन ही लगाते रहते हैं. ठीक है. अच्छा एक मिनट, ये वाली डायग्राम आगे वाली ज़्यादा अच्छी है डायग्राम, वो मैं आपको दिखाती हूँ पहले डायग्राम. हाँ देखें, अब ये इरिथ्रोपोइसिस है.
ठीक है, ऊपर से देखते हैं। हेमेटोसाइटोप्लास्ट, पहला होता है इमेच्योर सेल हेमेटोसाइटोप्लास्ट, ठीक है, इतना बड़ा है, स्टेम सेल्स है ये। फिर क्या बनता है रेड सेल की सीरीज में? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। फिर स्टिमुलेट होता है ये एक ग्रोथ इंड्यूसर और डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर से, जो है इरिथ्रोपोइटिन। और कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है। 90% किडनी से और 10% लिवर से भी बनता है। तो वो आया इरिथ्रोपोइटिन। कब आएगा? जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी। पहाड़ों में ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है, इरिथ्रोपोइटिन उनके ज़्यादा रिलीज होता है और वो ग्रोथ इंड्यूसर डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर है। तो फिर रेड लाइन की सीरीज ज़्यादा आरबीसी बनने लगते हैं। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट हुआ, फिर इसने इसको कन्वर्ट किया इरिथ्रोब्लास्ट में। ब्लास्ट जो है ना इमेच्योर सेल को कहते हैं, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट। फिर ये बन जाता है नॉर्मोप्लास्ट, फिर ये बनता है रेटिकुलोसाइट, फिर बनता है इरिथ्रोसाइट। बल्कि ये वाली डायग्राम के अलावा एक और भी है, वो ज़्यादा अच्छी डायग्राम है, वो दिखाती हूँ मैं आपको, वो ज़्यादा सही है। हाँ, ये वाली देखें, जेनेसिस ऑफ आरबीसी और इरिथ्रोपोइसिस। पहला सेल क्या है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट ने डिफ्रेंसिएशन फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर के साथ मिलकर बनाया प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होगा बेजोफिल इरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट होगा पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, ये सब याद करना है आपने। फिर ये कन्वर्ट होगा ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेनिंग, डाई किस वाले कलर की उससे स्टेन हो रही है। तो बेजोफिलिक ब्लू, पॉलीक्रोमेटोफिलिक ब्लू और रेड, ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट। लास्ट स्टेज होती है मैचुरेशन से पहले, ठीक है। फिर जो है इरिथ्रोसाइट बन जाता है, मैच्योर इरिथ्रोसाइट, जो बाय कॉन्केव डिस्क है। आप देखें इसमें कोई न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब एक्सट्रूड हो गया है। अब यहाँ पे इसको, अब आप देखेंगे एक चीज़ समझ लें, जब रेड ब्लड सेल बन रहा था ना, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कितना बड़ा था। जितने इमेच्योर, अब जैसे हम बड़े होते हैं तो हम तो छोटे से बड़े हो जाते हैं ना, पहले हम छोटे थे फिर अब बड़े हो गए, ठीक है। लेकिन आरबीसी में उल्टा है, पहले ये बड़ा होता है, ठीक है, और फिर ये छोटा होता जाता है। तो ये इमेच्योर, अगर माइक्रोस्कोपिक आप देखें ब्लड में किसी के इमेच्योर सेल्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं होंगे। अब ये बेजोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, ये उससे छोटा हुआ, फिर ये इससे छोटा हुआ, फिर ये इससे, यहाँ पे डीएनए मैचुरेशन हो गई, फिर न्यूक्लियस एक्सट्रूड हो गया डीएनए सिंथेसिस के बाद, फिर उसके बाद रेटिकुलोसाइट बना, और फिर यहाँ पे जो है इरिथ्रोसाइट बन गया। तो इरिथ्रोसाइट, ये हमेशा याद रखने की बात है कि जब इमेच्योर होता है तो वो बड़ा होता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो छोटा तो नहीं हम कहेंगे उसको, मतलब पहले से तो छोटा हो जाता है, लेकिन वो मैच्योर इरिथ्रोसाइट है, ये नॉर्मल साइज है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है आपने, क्योंकि एनीमिया जो है ना फिर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं सारे के सारे। अच्छा, स्टेजेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो अभी हम मैंने दिखाएंगे, आप इसको पढ़ भी लेते हैं। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है पहला स्टेज। The first cell identified as belonging to red blood cell series is proerythroblast. Under appropriate stimulation, large number are formed from colony-forming erythrocyte stem cells. ठीक है? Then proerythroblast divides multiple times, eventually forming many mature red cells. दूसरा क्या है जो बन जाता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद? बेजोफिल इरिथ्रोब्लास्ट. फर्स्ट जनरेशन सेल्स आर कॉल्ड बेजोफिल इरिथ्रोब्लास्ट बिकॉज दे स्टेन विद बेसिक डाइज एंड वेरी लिटिल हीमोग्लोबिन इज देयर. तो अभी हीमोग्लोबिन बिल्कुल थोड़ी सी बनना शुरू हुई है. देन रेटिकुलोसाइट. As the cell become filled with hemoglobin to a concentration of about 34%, the nucleus condenses to a small size and its final remnant is absorbed or extruded from the cell. It still contains small amount of basophil material, consists of remnants of Golgi apparatus, mitochondria and few other organelles. During this stage, the cell passes from the bone marrow into the blood capillaries by diapedesis. जो मैंने कहा था कि diapedesis यानी कि squeeze through कर सकते हैं small pores से from the capillary, ठीक है, pores of the capillary membrane. तो diapedesis करके
जो लास्ट स्टेज होती है तो वो फिर सर्कुलेशन में आने लगती है, पहले बोन मैरो में है फिर वो सर्कुलेशन में। लेकिन रेटिकुलोसाइट जो है लेस देन 1% होते हैं नॉर्मली हमारे पेरिफेरल सर्कुलेशन में। मैच्योर एरिथ्रोसाइट फिर बनता है, द रिमेनिंग बेसोफिल मटेरियल इन रेटिकुलोसाइट डिसअपियर्स विद इन 1 to 2 days टू बिकम मैच्योर एरिथ्रोसाइट। Because of the short life of reticulocyte, their concentration among all the red blood cells of the blood is normally less than 1%, क्योंकि बहुत उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और लेस देन 1% ही होता है उसमें, वरना सारे वो बोन मैरो में ही होते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेड सेल प्रोडक्शन की कैसे होती है, देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The total mass of red blood cells in the circulatory system is regulated within narrow limits. So number one, adequate RBCs are always available to provide sufficient transport of oxygen from the lungs to the tissues. हर वक्त हमें चाहिए RBC, तो उनका इतना important function है, हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, वो ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन, ठीक है। The cells do not become so numerous that they impede the blood flow. अब हमें पता है कि 99% हमने देखा था वो जब टेस्ट ट्यूब में अगर ब्लड को आप ड्रॉ करके सैंपल और एंटीकोगुलेंट डाल के और उसमें अगर रख दें एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हो जाता है, रेड सेल्स नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और वो उसकी परसेंटेज होती है रेड सेल की इन टोटल ब्लड वॉल्यूम, तो 99% तो हमारे रेड सेल्स हैं। अगर रेड सेल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर तो सर्कुलेशन इम्पीड हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा मतलब वाइट ब्लड सेल्स और वो तो इससे 1% है। तो रेड सेल की बहुत टाइट रेगुलेशन अल्लाह मैंने की हुई है कि ना वो ज़्यादा हो ना कम हो, दोनों फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन या बीमारी को दे गिव राइज टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। द सेल्स डू नॉट बिकम सो न्यूमरस दैट दे इम्पीड द ब्लड फ्लो, राइट। देन रेगुलेटर्स ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, अब क्या रेगुलेटर्स हैं। Tissue oxygenation is the most important regulator of RBC production. जैसे ही टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। जैसे ही हाइपोक्सिया होता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। इसलिए कि ऑक्सीजन कम है तो रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनेंगे ताकि उसमें ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। Any condition that decreases the oxygen transport to tissue decreases the rate of RBC production. तो कोई भी कंडीशन हो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज RBC प्रोडक्शन होने लगेगी। Thus when a person becomes anemic, anemic का मतलब है रेड ब्लड सेल्स कम है या हीमोग्लोबिन कम है, ये स्टेट होती है। Anemic as a result of hemorrhage or any other condition, the marrow begins to produce large amount of red cell to compensate. At very high altitudes where the quantity of oxygen in the air is greatly decreased, insufficient oxygen is transported to the tissue and the red cell production is greatly increased, ठीक है। ये तो आप लोग को माशाल्लाह पता भी था पहले से, मुझे लिखा था किसी ने। अच्छा देखें, अब ये देखें, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, प्रोइथ्रोब्लास्ट कैसे बनाएंगे। जैसे ही टिश्यू ऑक्सीजनेशन अगर डिक्रीज हुई है, ये देखेंगे डिक्रीज हो गई टिश्यू ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो डिक्रीज कब हो सकती है, फैक्टर्स दैट डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, नंबर 1 लो ब्लड वॉल्यूम, हेमोरेज हो गया या सडन हेमोरेज हुआ, या क्या हुआ कि क्रॉनिक ब्लड लॉस थोड़ा थोड़ा होता रहा, ओकल्ट ब्लड लॉस जो पता नहीं चलता है वो होता रहा, या फिर किसी टाइप का एनीमिया हो गया, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सेल हो गई या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई, एनीमिया, तो इसमें भी ऑक्सीजनेशन टिश्यू की डिक्रीज हो जाएगी। लो हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो गए, या लो हीमोग्लोबिन हो गया, या ब्लड फ्लो पुअर हो गया, किसी तरह से इम्पीड हो रहा है, किसी टिश्यू में जा नहीं रहा, टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, या पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि जितनी भी लंग डिजीज़ हैं जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एम्फाइजीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्मा, उन सब में जो है ना, ये पल्मोनरी डिजीज़ में भी जो है, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती है सही, तो उसमें भी आरबीसी बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, पॉलीसाइथीमिया हो रहा होता है उसमें, ठीक है। तो ये कॉजेज़ हैं सारी डिक्रीज़ करने की टिश्यू ऑक्सीजनेशन। अब टिश्यू ऑक्सीजनेशन जब डिक्रीज़ हुई
तो इसने स्टिमुलेट किसको किया? किडनी को। किडनी स्टिमुलेट हो गया, वहाँ से एक निकलता है इरिथ्रोपोइटिन फैक्टर। इरिथ्रोपोइटिन निकला और वो कहाँ पे एक्ट करता है? हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स पे। तो जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो इस इरिथ्रोपोइटिन की वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं, ग्रोथ इंड्यूसर और डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर बनने लगते हैं। प्रोइथ्रोब्लास्ट रेड ब्लड सेल की लाइन जो है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी रेड सेल बनाने लगती है और टिश्यू ऑक्सीजनेशन फिर बहाल हो जाएगी। सारे रेड ब्लड सेल्स में कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसमें, ठीक है। 90% जो है वो किडनी से बनता है इरिथ्रोपोइटिन, लेकिन 10% लिवर से भी बनता है। तो लेकिन मेनली अगर आपसे कोई पूछे तो आप किडनी ही कहिए, क्योंकि 90% किडनी से निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक इसकी रेगुलेशन इस तरह होती है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन की। Normally about 90% of the erythropoietins are formed in the kidney, the remainder is formed in the liver. Then effect of erythropoietin erythrogenesis that I have already told you. When a person is exposed to low oxygen, erythropoietin begins to be formed within minutes to hours, yet almost no new RBCs appear in the circulating blood until about 5 days. द इफेक्ट ऑफ इरिथ्रोपोइटिन अब जैसे मैं पहाड़ों पे चल जाऊँ तो फ़ौरन थोड़ी मैं सुर्खों सफ़ेद हो जाऊँगी। जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो नेटिव्स हैं, उन्हीं की वही होंगे, इसलिए कि उसमें तो टाइम लगता है। द इफेक्ट ऑफ इरिथ्रोपोइटिन टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोप्लास्ट फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो. Erythropoietin causes these cells to pass more rapidly through different erythroblastic stages than they normally do, further speeding up the production of new RBCs. ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया आपको डायग्राम में, तो वो ज़्यादा अच्छा आप क्या होगा. Then maturation of red blood cells. अब देखें maturation of red blood cells के लिए ना हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. अब ये मैंने शायद इसमें लिखा नहीं. अभी एक चीज़ बताती हूँ आपको. मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस, और ना सिर्फ मैचुरेशन के लिए बल्कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी ज़ाहिर है हमें पास आयरन होनी चाहिए. हम हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे आयरन कितना ज़रूरी है बॉडी में, ठीक है. तो ऐसी चीज़ें जिसमें ये विटामिन B12 हो, फॉलिक एसिड हो, हमारे न्यूट्रिशन में होनी चाहिए ना. आयरन हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, जब हम हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पढ़ेंगे. तो मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर विटामिन B12. विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबैलामीन, और नंबर 2 फॉलिक एसिड, और इसको कहते हैं हम P, इसका साइलेंट है, टीरोयल ग्लूटामिक एसिड. तो ये दोनों चीज़ें ना हमारी न्यूट्रिशन में शामिल हैं. विटामिन B12 एनिमल सोर्स से आता है, इसको आगे तुम लोग ना प्लीज़ लिख लेना. एनिमल सोर्स से आता है, यानी कि मीट में होता है, ठीक है. रेड मीट, चिकन, इन सारी चीज़ों में होता है. प्लस किस में होता है? एनिमल सोर्स है तो उसमें होगा, एग में होगा, और बटर में होगा, मिल्क में होगा, योगर्ट में होगा, इन सारी चीज़ों में. और मीट, सारे मीट्स उनमें होगा ये, ठीक है. तो ये एनिमल ओरिजिन में है. और फॉलिक एसिड कहाँ होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है. तो हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं ये दोनों चीज़ें, कि मतलब हम अगर रेड मीट नहीं खा रहे हैं तो भाई आप फिर फिश और चिकन तो ज़रूर खाएं, ठीक है. अगर जो वेजिटेरियन होते हैं ना उनमें हमेशा विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है, और जो ट्रू वेजिटेरियन है उनको विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगने चाहिए, सप्लीमेंट लेने चाहिए उनको, ठीक है. और अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे तो हम फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंट हो जाएगा. तो बैलेंस डाइट इसलिए कहते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए. बोथ ऑफ अबव आर रिक्वायर्ड फॉर किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? DNA सिंथेसिस के लिए, because each in a different way is required for the formation of thymidine triphosphate, one of the essential building blocks of DNA. DNA का building block बनाने के लिए हमें ये दोनों चाहिए. वो क्या है? थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट. उसके लिए हमको ये दोनों विटामिन B12 फॉलिक एसिड चाहिए. Therefore, a lack of either causes abnormal and diminished DNA synthesis and subsequently failure of nuclear maturation and cell division. अब इस बात को यहीं पे समझ लीजिए कि अगर शुरू ही में उसकी फेलियर ऑफ DNA सिंथेसिस हो जाए तो फेलियर ऑफ न्यूक्लियर मैचुरेशन एंड सेल डिवीजन हो जाएगी. यानी कि अगर सेल, जैसा हमने देखा हेमाटोपोइसिस में शुरू में लार्ज होता है, फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है वो छोटा होता जाता है, ठीक है, नॉर्मल बनने के लिए. तो अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड नहीं होगा हमारी डाइट में
तो मैचुरेशन फेलियर हो जाएगी और वहीं पे उसकी मैचुरेशन अरेस्ट जब होगी तो सेल्स कैसे होंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले में बड़े थे, अब मैच्योर ही नहीं हो रहे तो छोटे तो नहीं होंगे, तो उनको फिर कहते हैं मैक्रोसाइट्स। तो एज अ रिजल्ट लार्जर देन नॉर्मल रेड सेल्स कॉल्ड मैक्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। दे आर ओवल इन शेप इंस्टेड ऑफ बाइकॉनकेव एंड सो दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन क्यों हो जाएगी, 120 डेज होती है आरबीसी की लाइफ स्पैन, 120 डेज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में, टूट जाते हैं और उसकी जगह फिर बोन मैरो नया बना देती है, ठीक है। लेकिन अब वो क्योंकि मैंने बताया था कि बाइकॉनकेव होते हैं तो आराम से फ्लेक्सिबल उनकी मेम्ब्रेन होती है, तो छोटे छोटे पोर्स में से वो आसानी से निकल जाते हैं कैपिलरी के। लेकिन अगर ये ओवल होंगे ना तो जब ये पोर से निकलने लगेंगे तो ये रप्चर हो जाएंगे, स्प्लीन में जाएंगे, पल्प में जाएंगे तो ये रप्चर हो जाएंगे, तो ये जल्दी ये फिर ख़त्म होने लगेंगे, तो इसकी वजह से फिर एनीमिया हो जाएगा। लेकिन एनीमिया कैसा होगा, उसमें अगर आप उसकी फिल्म बनाएंगे यानी कि माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखेंगे ब्लड की, तो आपको सेल्स बड़े बड़े नज़र आएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि मैचुरेशन फेलियर हो रही है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रही उसमें, तो मैक्रोसाइट बोलेंगे हम उसको। देयरफॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज इज अफेक्टेड ग्रेटली बाय अ पर्सनस न्यूट्रिशनल स्टेटस। सही है। तो अगर खैर चलें वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, अभी बहुत हो जाएगा अगर मैंने बताया तो। नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस दैट, जब एनीमिया पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से हम पढ़ लेंगे। विटामिन B12 रिक्वायर्ड ईच डे। अब ये भी देखो कितनी समझने की बात है, विटामिन B12 जो है वो इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में हमको चाहिए, जो हम अपनी नॉर्मल डाइट लेते हैं उसमें पूरा हो जाता है 1 to 3 माइक्रोग्राम्स। और अल्लाह मियाँ ने क्या एक हमारे पास चीज़ रखी है कि इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर, कितना 1000 टाइम्स दिस अमाउंट, यानी 1 to 3 माइक्रोग्राम हमें रोज़ चाहिए और 1000 टाइम्स ऑफ दैट 1 to 3 माइक्रोग्राम इज स्टोर्ड इन अवर लिवर ऑलरेडी। यानी अगर हम यकलख्त कुछ खाना पीना छोड़ दें तो भी हमारे लिवर में अभी 1000 टाइम्स तो रखा हुआ है, ठीक है, तो वो वहाँ से निकल के आएगा और हमको ये वाला एनीमिया नहीं होगा। देयरफॉर 3 to 4 years of defective vitamin B12 और टिराइल ग्लूटामिक एसिड एब्जॉर्प्शन आर रिक्वायर्ड टू कॉज मैचुरेशन फेलियर एनीमिया। इतनी अल्लाह मैंने सर्वाइवल की चीज़ें रखी हैं, जरा देखें आप गौर करें उसके ऊपर, ठीक है, क्या ज़बरदस्त बात है। तो जब पेशेंट आएगा जिसको मैं डायग्नोज करूँगी तो वो तो 3-4 साल से उसकी ये हशर हो रही होगी भाई, 3-4 साल से उसने अपना ख़राब किया हुआ होगा हाल, ठीक है, जब उसको सिम्टम्स डेवलप होंगे। मैचुरेशन फेलियर कॉज्ड बाय पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब क्या है कि डाइट में तो हम ले रहे हैं विटामिन B12, लेकिन डाइट सही है मेरी, ठीक है, लेकिन अगर इंटेस्टीन से ही एब्जॉर्ब ना हो तो फिर तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इंटेस्टीन भी तो मेरी सही होनी चाहिए और जो है उसमें कोई मैल एब्जॉर्प्शन वगैरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। A common cause of red blood cell maturation is failure to absorb vitamin B12 from the gastrointestinal tract। अब ये याद रखना है आपको कि विटामिन B12 स्मॉल इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होता है। जब हम GIT पढ़ेंगे और तफसील से पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टीन कौन सी, इलियम से एब्जॉर्ब होता है। द पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा में ग्लैंड्स होते हैं, जब हम वो पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके एक पैराइटल सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। अब विटामिन B12 बाइंड्स विद दिस इंट्रिंसिक फैक्टर एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम। अब इलियम में जो रिसेप्टर्स हैं एब्जॉर्प्शन के, वो सिर्फ विटामिन B12 जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर से कंबाइन न करे वो उसमें जाके लगते ही नहीं है उन रिसेप्टर्स में, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। इट कैन नॉट बी रीअब्जॉर्ब गलत लिख दिया, इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इफ इंट्रिंसिक फैक्टर इज नॉट अवेलेबल। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों नहीं अवेलेबल होगा, अब अगर कोई गैस्ट्रिक एट्रोफी हो गई है म्यूकोजा के ग्लैंड्स में, एट्रोफी का मतलब है क्या है, एट्रोफी क्या होती है, डिक्रीज इन द सेल नंबर, यानी कि पैराइटल सेल्स में कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सेल्स एट्रोफीड हो रहे हैं, तो गैस्ट्रिक एट्रोफिक म्यूकोजा हो गई है, तो इट कैन रिजल्ट इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया दैट इज़ नोन एज परनीशियस एनीमिया।
अच्छा, अब क्या है कि अगर ये वाला एनीमिया होगा ना, तो इसमें सेल की टाइप कैसी होगी अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे? क्योंकि विटामिन B12 नहीं है, मैक्रोसाइट्स होंगे, ठीक है, बड़े होंगे वो सेल्स, क्योंकि मैचुरेशन फेलियर हुआ हुआ है। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्ट भी कहते हैं, बड़े सेल को या तो मैक्रोसाइट कहते हैं या मेगालोब्लास्ट कहते हैं। तो इस एनीमिया को मैक्रोसिटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो और भी कॉजेज़ हैं, अगर जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस में हमारे विटामिन B12 भी नहीं है डाइट में, तो हो जाएगा ना एनीमिया, लेकिन उसको पर्नीशियस एनीमिया नहीं कहेंगे, हालांकि है वो भी मेगालोब्लास्टिक। सिर्फ उस वाले कंडीशन को हम ये कहेंगे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा था और वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा विटामिन B12 को, सिर्फ उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। तो इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया दैट इज़ नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। बाद में हम और तफसील से पढ़ लेंगे। अभी इतना समझ में आ गया तो बस इतना ही है, बस आगे जाके एनीमिया की क्लासिफिकेशन में आपको और आसानी होगी। Once the vitamin B12 is absorbed from the gastrointestinal tract, it is first stored in large quantities in the liver and then released slowly as needed by the bone marrow. जब भी ज़रूरत होती है bone marrow में आता रहता है ये liver से। When intrinsic factor is not secreted from atrophic gastric mucosa, vitamin B12 cannot be absorbed through the gut, and this type of deficiency of vitamin B12 leads to pernicious anemia. डेली रिक्वायरमेंट, अब मैंने बताया था 1 to 3 माइक्रोग्राम है, 1000 टाइम्स इससे ज़्यादा लिवर में होता है, तो 3 to 4 ईयर्स चाहिए जब इसके सिम्टम्स डेवलप होंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो विटामिन B12 इज प्रेजेंट द मीट एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज़रूरी है, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स याद रखना, क्योंकि पेशेंट आया आपको, फिर बाद में आप CPM देखेंगे, आप करा रहे हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया आ रहा है, तो आपको क्या पता कि उसको विटामिन B12 कम है या फॉलिक एसिड कम है। ज़ाहिर है हम टेस्ट कराएंगे, तो टेस्ट अगर वो लेके आया कि विटामिन B12 कम आ रहा है उसको, तो आप हिस्ट्री लें आप उससे। वेजिटेरियन तो नहीं है वो, ठीक है, मीट लेता है या नहीं, दूध पीता है, मक्खन अंडे ये सब खाता है या नहीं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। रिप्लेस तो करेंगे, अभी तो उसको कमी हुई है, लेकिन फिर आप एज रिगार्डिंग हिज डाइट यू हैव टू, और हर डाइट यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस। फॉलिक एसिड, जिसको हम कहते हैं टीरोइल ग्लूटामिक एसिड। फॉलिक एसिड इज अ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन सम फ्रूट्स एंड मीट्स। मीट्स में सिर्फ लिवर है, यानी कि जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन मीट, उसमें लिवर में भी होता है टीरोइल ग्लूटामिक एसिड। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल दे आर सो इम्पॉर्टेंट, और जस्ट लुक एट इट दैट टीरोइल ग्लूटामिक एसिड इज डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। अब देखें, अब कुकिंग से तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट सैलड्स। सैलड कितनी ज़रूरी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सैलड हो गए, और आपके जो हैं वो क्या होता है, बंद गोभी वगैरह, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। तो सैलड में होनी चाहिए, लेकिन अच्छी तरह धुली हुई हो, ताकि उसमें कोई पैरासाइट्स वगैरह ना हो, ठीक है। तो मैं तो जब सब्ज़ी लाती हूँ ना, उसको बड़े से बाउल में मैं पानी में डिप कर देती हूँ बहुत देर तक, फिर उसको धोने के बाद फिर बिल्कुल उसमें से सब कुछ निकल जाता है, एंड देन आई ईट दैट सैलड। अच्छा, इन मैनी इंस्टेंसेज ऑफ मैचुरेशन फेलियर द कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। अब अगर गैस्ट्रिक एट्रोफी नहीं भी है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन ईलियम में ही कोई ख़राबी हो गई जहाँ से उसने एब्जॉर्ब होना था, जैसे होता है मैल एब्जॉर्प्शन, सीलियक स्प्रू या ट्रॉपिकल स्प्रू, आप जाएंगे थर्ड ईयर में तो आप पढ़ेंगे सारी डिजीज़, तो ईलियम की डिजीज़ में भी तो हो सकता है ये, है ना। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अगर कम है तो फिर उसकी वजह से, एट्रोफी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, और अगर वहाँ से ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा डाइट्री, तो फिर हमें पर्नीशियस के बजाय सिर्फ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, या किसी को भी हो जाएगा। ओए ख़त्म हो गया, ओ वेरी गुड। चले, ठीक है, समझ में आ गया ये। जो नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए कोई भी, राइट। सो ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।